Jai Hind student, welcome to you all in Sri Ram Public School online classes. I am Mr. Vinod Kumar Gupta, your computer teacher, and today we will learn about the classification of computer software. Okay, that is system software and application software. And in last lecture we have discussed about chapter number 3 software, and in this chapter we have discussed already that basic definition of hardware, software and its type. Okay, so now we are going to start the topic computers, classification of computer software. Okay, so this is the classification of computer software. Okay, that is computer software can be categorized into two parts, mainly two parts. Computer software categorized into mainly two parts, that is system software and application software. Okay, दो प्रकार के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है. Further, system software categorized into four parts, that is operating system, utility program, device driver, language processor. Okay, so these are the types of system software. Okay, and the application software, there are two majorly part of application software, that is basics of application software. You can say this as a general purpose application software. This is general purpose application software. And second is a specialized application software. We can say that customized application software. Okay, this is customized application software, and this is general purpose application software. So this is the classification of computer software. And now we will discuss system software and its type. Okay, and then after application software in detail. Okay, so now we are going to start with system software. So basically what are the objective of today's topic, that is we will learn about types of computer software, we will learn about system software, types of system software. Okay, this is operating system software, second device driver, third language processor, and fourth is utility software. Okay, so we will learn about these things in today's video lecture. And now I am going to start with system software. So what is system software? What is system software? System software is a set of program which is used to control the internal functioning of the computer system. It coordinates the working of various hardware components and also manage them so that they can be used up to their full efficiency. It acts like a bridge between the hardware and the user. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? इट इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स. ये एक प्रोग्राम का एक सेट है विच इज यूज टू कंट्रोल द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, जो कि कंप्यूटर सिस्टम के आंतरिक फंक्शन, आंतरिक जो क्रिया होती है, जो इंटरनल फंक्शन होता है, उसको कंट्रोल करता है. कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर. ओके, इंटरनल फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर. इट कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ वेरियस हार्डवेयर कंपोनेंट. ठीक है, ये क्या काम करता है कि हार्डवेयर कंपोनेंट आपके जितने भी कंप्यूटर में लगे होते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करता है, उनके साथ काम करता है. एंड आल्सो मैनेज देम, सो और उनके साथ मैनेज भी करता है, सो दैट दे कैन बी यूज्ड अप टू देयर फुल इफिशिएंसी, जिससे कि उसकी पूरी इफिशिएंसी, जो पूरी क्षमता है, उसका यूज किया जा सके, यूज किया जाए. ठीक है. इट एक्ट्स लाइक ए ब्रिज बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर. ठीक है, ये जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात हो रही है यहाँ पे. सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे एक ब्रिज होता है, वैसे ही हार्डवेयर और यूजर के बीच में, अगर मैं यूजर हूं और हार्डवेयर मेरा कंप्यूटर है, तो हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक ब्रिज प्रोवाइड करता है, यानी एक पुल का काम करता है,
जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हो गया, ये एक तरह का ऐसा प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर सिस्टम को इंटरनल फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है और ये हार्डवेयर कंपोनेंट के साथ कोऑर्डिनेट करता है, काम करता है, मिलकर काम करता है और ये भी मैनेज करता है कि उसकी पूरी इफिशियंसी को यूज कर सके, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर की पूरी इफिशियंसी को यूज कर सके। और ये जो है हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक ब्रिज की तरह, एक पुल की तरह काम करता है। तो ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन था। एंड वी विल लर्न नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। okay, so there are 4 types of system software basically. First is operating system software, second is device driver, third is language processor, and fourth is utility software. Okay, so there are 4 types of system software and we will learn one by one these in detail. Okay, so first we will learn about operating system software. So what is operating system software? So there is a master control program. मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम का मतलब है कि एक ऐसा कंट्रोल प्रोग्राम है, एक ऐसा विशेष कंट्रोल प्रोग्राम है दैट रन्स द कंप्यूटर बाय मैनेजिंग इट्स डिफरेंट रिसोर्सेज लाइक प्रोसेसिंग, इनपुट आउटपुट, डिवाइस, स्टोरेज एक्सेट्रा। एक ऐसा कंट्रोल प्रोग्राम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात की जा रही है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को चलाता है। कैसे? बाय मैनेजिंग इट्स डिफरेंट रिसोर्सेज, इसके डिफरेंट रिसोर्स को मैनेज करके, जैसे कि प्रोसेसिंग हो गया। प्रोसेसिंग का मतलब यहाँ से क्या है, किससे है? सीपीयू से। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, आप लोगों ने पढ़ा इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, और इसका स्टोरेज, स्टोरेज का मतलब है प्राइमरी मेमोरी भी हो सकता है और सेकेंडरी मेमोरी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया, इसके रिसोर्स को यूज करता है अपने सिस्टम। इट्स एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर बाय हेल्पिंग देम टू पासिंग देयर मैसेज टू ईच अदर। ठीक है, और ये जो है कंप्यूटर और यूजर के बीच में, इंटरफेस का मतलब है कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है टू मैसेज टू ईच अदर का मतलब है कि एक दूसरे से मैसेज कन्वे करके, पास करके। ठीक है, सो बेसिकली अगर आप ये कहेंगे कि मैं अगर सिंपल सी बात में अगर डेफिनेशन बोलूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स द फिजिकल कनेक्शन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या करता है, वो एक फिजिकल कनेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिजिकली कनेक्ट करता है। ठीक है, इट इज ब्रिज बिटवीन द हार्डवेयर एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये किसके बीच में एक पुल का काम करता है? जो हार्डवेयर है, कंप्यूटर का हार्डवेयर है, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसके बीच में ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। ठीक है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं रहेगा कंप्यूटर में तो ना तो आप हार्डवेयर का यूज कर सकते हैं, ना तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, एक ब्रिज प्रोवाइड करता है, एक कनेक्शन, फिजिकल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन बी कैटेगराइज एज CUI एंड GUI। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को बेसिकली 2 भागों में बांटा गया है। एक है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और एक है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CUI का मतलब है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। क्या होता है ये CUI ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज द यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ टाइप कमांड। ठीक है, तो CUI ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर को टाइप कमांड के फॉर्म में कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है। यानी कि अगर हम बेसिकली सिंपल सी बात ये कहें कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कमांड के फॉर्म में कंप्यूटर से बात करता है। ठीक है, इसका जो एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, डॉस और यूनिक्स, वो CUI बेस्ड होता है, डॉस और यूनिक्स। ठीक है,
ठीक है। तो ये होता है कमांड के फॉर्म में इंटरेक्ट करता है। और जीयूआई क्या करता है, जीयूआई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। यहाँ पे हम लिखना भूल गए हैं, यहाँ पे इसका मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो ये जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, दैट इज जीयूआई यूजर कैन इंटरेक्ट विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है, लाइक मेनू ऑफ कमांड्स, आइकन्स, कॉन्टेक्स्ट मेनू एक्सेट्रा यूजिंग ए माउस पॉइंटर। सो ये ग्राफिकल यूजर इंटर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम इज इजी टू यूज टू कंपेयर टू सीयूआई, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब है ऑब्जेक्ट पे बेस्ड होता है, ठीक है। जैसे कि जीयूआई कैन इंटरेक्ट, जीयूआई जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंटरेक्ट करता है, ग्राफिकल ऑब्जेक्ट की मदद से, जैसे कि मीनू आइकन हो गया, ठीक है, आइकन्स हो गए बहुत सारे, कॉन्टेक्स्ट मेनू हो गया, ठीक है। इन सब चीज़ों की सहायता से वो कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर से, ठीक है। यूजिंग माउस पॉइंटर, माउस पॉइंटर का यूज करके, देखिए हम यहाँ पे माउस पॉइंटर यूज कर रहे हैं, तो ये इसको आप कहेंगे कि ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपका है, जो कि आपका जो हमारे कंप्यूटर में विंडोज 7 सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, ठीक है। ऑपरेटिंग विंडोज 7 जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। अब देखिए ग्राफिकल, मैं यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक पॉइंटर है, ये पॉइंटर क्या कर रहा है, ये माउस पॉइंटर है, ठीक है। सो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम इज इजी टू यूज टू कंपेयर टू सीयूआई। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सीयूआई से ज़्यादा आसान है सीखना, ठीक है। DOS and Unix are the CUI operating system, whereas Windows is popular GUI based GUI operating system. Okay, so next we will discuss what is, so this is the operating system software. Now we will discuss language processor. Okay, so language processor क्या होता है, कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज, कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, ठीक है। मेड अप ऑफ जीरोज एंड वंस, जो कि जीरो और वन से बने लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है, उसी लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है, उसी को मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है, ठीक है। विच इज वेरी डिफिकल्ट टू यूजर फॉर इंटरेक्टिंग विद द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, जो कि कंप्यूटर सिस्टम से यूजर का इंटरेक्शन करने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। जीरो वन को समझना एक यूजर के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए ए ट्रांसलेटर प्रोग्राम इज यूज, एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम का यूज किया जाता है, उसको कहा जाता है लैंग्वेज प्रोसेसर, ठीक है। लैंग्वेज प्रोसेसर को ट्रांसलेटर प्रोग्राम कहते हैं। तो लैंग्वेज प्रोसेसर क्या करता है, व्हिच कन्वर्ट्स यूजर प्रोग्राम इनटू बाइनरी कोड्स सो दैट मशीन कैन अंडरस्टैंड द यूजर इनपुट। क्या काम करता है, व्हिच कन्वर्ट्स, यूजर प्रोग्राम को बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि मशीन उस यूजर इनपुट को समझ जाता है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज प्रोसेसर काम है। लैंग्वेज प्रोसेसर मतलब कंप्यूटर क्या करता है कि जीरो और वन को समझता है, इसलिए उसको क्या किया था, यूजर प्रोग्राम को जीरो वन बाइनरी कोड में कन्वर्ट किया जाता है। यानी जो प्रोग्रामर, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, जो प्रोग्रामर होते हैं, वो जो कोड राइट करते हैं उसको हम जीरो और वन के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि मशीन उसको अच्छे से समझ सके, इनपुट समझ सकेगा, तभी वो आउटपुट प्रोसेस करके आउटपुट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे देखिए सोर्स कोड हमने प्रोवाइड किया, ठीक है। अब ये लैंग्वेज प्रोसेसर क्या चीज काम करता है, लैंग्वेज प्रोसेसर ये ऑब्जेक्ट कोड है, ठीक है, जो हमको चाहिए था, मतलब सोर्स कोड को मशीन कोड में बदला गया है, ठीक है। और ये लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है, यहाँ पे लैंग्वेज प्रोसेसर आपका जो है वही, ठीक है, जो आपका ट्रांसलेटर है उसी को लैंग्वेज प्रोसेसर कहा गया है। अब लैंग्वेज प्रोसेसर जो है, ठीक है, लैंग्वेज प्रोसेसर आपके तीन होते हैं, असेंबलर होता है, कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, ठीक है। तो असेंबलर देखिए, असेंबलर क्या चीज है, दिस लैंग्वेज प्रोसेसर इज यूज्ड टू ट्रांसलेट एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू द मशीन लैंग्वेज, ठीक है। ये जो लैंग्वेज प्रोसेसर है वो मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम को, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। असेंबलर
क्या काम करता है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया असेंबलर आपका। उसके बाद आपका है कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या होता है, कंप्यूटर कन्वर्ट से हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब है यहाँ पे ह्यूमन रीडेबल, जो कि एक यूजर या कोई भी उसको अच्छे से समझ सकता है, ह्यूमन रीड कर सकता है। लेकिन मशीन लैंग्वेज को ह्यूमन रीड नहीं कर पाएगा। उस मशीन को समझने के लिए किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को हमें पहले मशीन लैंग्वेज में बदलना पड़ता है। तो कंप्यूटर कन्वर्ट से हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। इट कन्वर्ट्स ऑल द स्टेटमेंट ऑफ ए सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड इन वन गो। ये क्या करता है, जितने भी स्टेटमेंट होते हैं, जितने भी स्टेटमेंट होते हैं, सिंटैक्स होते हैं सोर्स कोड के, उनको ऑब्जेक्ट कोड में एक ही बार में चेंज कर देता है। इफ द प्रोग्राम इज एरर फ्री, अगर प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, त्रुटि युक्त है, त्रुटि मुक्त है, इन C++ कोबोल फॉरट्रान लैंग्वेज कंपाइलर्स आर यूज। ठीक है, C++ लैंग्वेज हो गया, कोबोल हो गया, फॉरट्रान लैंग्वेज हो गया, ये सब जो है कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज होते हैं। ठीक है, यानी इसको कंपाइल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है लैंग्वेज प्रोसेसर का जो टाइप है वो इंटरप्रेटर है। ठीक है, दिस लैंग्वेज प्रोसेसर आल्सो कन्वर्ट से हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन कोड्स। ये लैंग्वेज प्रोसेसर जो होता है वो भी एक हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में बदलता है। ठीक है, बट नॉट इन वन गो, लेकिन एक बार में नहीं। इट रीड्स वन लाइन ऑफ द सोर्स कोड एंड कन्वर्ट्स इट इन द करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट कोड। ये एक एक लाइन को चेक करता है, ये सोर्स कोड के एक एक लाइन को रीड करता है और उसको करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है। ठीक है, ये काम करता है। और कंपाइलर में क्या था, इन वन गो का मतलब है कि एक ही बार में सभी सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है, यानी ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है, और उसमें एक एक लाइन में, इंटरप्रेटर में एक एक लाइन में चेंज करता है। ऑब्जेक्टिव दोनों का सेम है, लेकिन थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है कि उसको एक बार में कर देता है और इसको जो है एक एक लाइन से करता है। ठीक है, द बेसिक का मतलब है, बेसिक का फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड लैंग्वेज यूजेज एंड इंटरप्रेटर। ठीक है, बिगिनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड लैंग्वेज यूजेज इंटरप्रेटर, यानी ये बेसिक का मतलब है कि ये ऐसा कोई बेसिक कोई इसमें बहुत सारे लैंग्वेज आते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे लैंग्वेज आते हैं, आपका पाइथन भी आता है। ठीक है, पाइथन भी आपका जो है इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे लैंग्वेज आते हैं और ये इसको जनरल पर्पज इसलिए कहा गया है क्योंकि जितने भी जनरल बाकी लैंग्वेज हैं, जनरल सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड है, उसको उसमें क्या होता है, इंटरप्रेटर कोड होता है। ठीक, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो लेक्चर में आज हम लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को और लैंग्वेज प्रोसेसर को पढ़ा। कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिवाइस ड्राइवर पढ़ेंगे। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। ठीक है, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स जैसे कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया, बैकअप यूटिलिटी हो गया, कंप्रेशन यूटिलिटी हो गया, डिस्क डिफ्रेगमेंटेड हो गया, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, ठीक है, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन टूल, इन सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो कल आपका जो है पूरा सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लीज स्टूडेंट make a proper note from these video lectures and ask the doubts in doubt clearing session if you have any. okay, और स्टूडेंट्स मैंने आपको 11 मई में आपको मैंने एक असाइनमेंट दिया था और उसका हमने डेट जो लास्ट डेट रखा था 16 मई। ठीक है, तो प्लीज स्टूडेंट जो लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं उसको आप लोग उस टास्क को कंप्लीट करके PDF फॉर्म में या इमेज फॉर्म में हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।